ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ, ਆਤਮਿਕ ਮੱਲ ਯੁੱਧ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, है ना। यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और तब सत्य आपको आज़ाद करेगा। तो जानना बहुत ज़रूरी है, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ, ਆਤਮਿਕ ਮਲਯੁੱਧ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਘੜੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਨਜੀ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਤਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ 6 ਅਤੇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਬੂਵਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਬਾਝੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਫॉर द lack of knowledge, ਬਿਕੋਜ਼ thou hast rejected knowledge, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫੀਟਡ ਲਾਈਫ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਭਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫॉर ਜਸਟ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਟਡ ਲਾਈਫ ਜੀਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ है कि ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ चाहिए। ओके, प्रभु के वचन में यहाँ पर ज़बूर 144 उसकी पहली पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। ठीक है, द लॉर्ड माई स्ट्रेंथ, वो मुझे जो है मेरे हाथों को लड़ाई करना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। सो द लॉर्ड टीचेस, हमारे हाथों को लड़ाई करना, हमारी उंगलियों को जो है युद्ध करना सिखाता है। परमेश्वर की ओर से जो है सब कुछ जो मुहैया किया जाना चाहिए, जो हमें शैतान पर फतह पाने के लिए कुछ भी जो चाहिए परमेश्वर की ओर से मुहैया है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है। इसलिए ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ,
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਮਰਥ, ਕੂਵਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। दूसरा सैमुएल 22 चैप्टर उसकी 35 आयत ਵਿੱਚ लिखा कि वो मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है, ठीक है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती है। कि जिन्ना मर्जी स्ट्रोंग शैतान होवे, शैतान दियां ताकतां होण, ਉਹ ਮੈਨੂੰ जो है ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ है कि किन्ना भी ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ शैतानी ताकतां क्यों ना है, जादू टूना है, कर्स है, किसी ने कुछ किया हुआ है, या पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला जनरेशनल कर्स है, कुछ भी क्यों ना हो, खुदावन परमेश्वर यसु मसीह सानू सिखाते ने, टीच करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि असीं फतहमंद जिंदगी जीए। सानू किसी बला तो डरन की लोड़ नहीं है, किसी भी शैतानी हरकत तो डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि शैतान जरा हारिया है, डिफीटेड है। प्रभु यसु मसीह ने उस ते फतह पा ली है, तो वह कलीसिया नूं तैयार करता, प्रिपेयर करता है कि असी उस ते फतह पाइए, हर बदरू ते फतह पाइए, हर एक सुपरस्टिशन ते फतह पाइए, हर एक इग्नोरेंस अज्ञानता ते फतह पाइए, हर एक रिचुअल ਅਤੇ परंपरा ਜਿਹੜੀ वचन के खिलाफ है उत्ते फतह पाइए, हर एक उस कल्चरल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚੈਪਟਰ 6 ਉਸ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡਾ ਮਲਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मांस और लहू से नहीं, शरीरक नहीं है, जिस्मानी नहीं है, ठीक है, बल्कि उन प्रधानताओं, अधिकारियों और संसार के अंधकार के शख्सों के साथ है, जो दुष्ट आत्मा की ताकतों उनके साथ है जो आकाश में। तो वेरी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पौलुस कलीसिया ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਰੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆਸਮਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਏਅਰ ਦੇ ਤੋਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਸਨੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਬਦਰੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉੱਪਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੌਨ 10:10 ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ 10ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹੋ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
गरजते हुए शेर के माने ढूंढता रहता है किसको फाड़ खाए, वो लगा रहता है, उसको कुछ परवाह नहीं है। आप बिलीव करें ना बिलीव करें, आप उसे तंग करें या ना करें, आप एग्री हो या ना हो, शैतान अपनी तरफ से जो है कलीसिया के खिलाफ, फैमिलीज के खिलाफ, हेल्थ के खिलाफ, यूनिटी के खिलाफ, हमारी एकता के खिलाफ, हमारी शांति के खिलाफ काम करता है। तो आप और मैं प्रिपेयर होना, तैयार होना है। ऐसे नहीं कि हम हवा में मुक्के मारते रहें। स्पेसिफिक टारगेटेड प्रेयर करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट तरीका है किस तरह से जो है मसीह ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आप और मैं जब तक असी सिखांगे नहीं कि लड़ाई किमें लड़नी है, साडा दुश्मन कौन है, किस तरह वार करता है, उन्होंने डायग्नोस किमें करना है, हर चीज़ के पिछे किमें जो है शैतानी ताकत है, ध्यान दिता जाए। हर चीज़ जी है, हर जी बुराई है, ध्यान दिता जाए। जरूरी नहीं कि हर चीज़ के पिछे जो शैतान बैठा है, वो जरा पैरानोइड जो होना वो ठीक नहीं। जो ना कई बार लोग निच मारन तो सोचते भी ये भी शैतान नहीं लैके आया, हवा गई तो शैतान लैके आया। हर चीज़ में शैतान को इन्ना ग्लोरीफाई ना किया जाए। नो, कुछ काम असी अपनी गलती ना कर लैते, वो जिम्मेदार असी। कुछ काम जड़े ने वो शैतान करता है, तो सानू ये पता होना चाहिए, डिसर्न करना है, परखना है, जांचना है कि किहड़ा काम शैतान वालों तो किहड़ा इंसान वालों। कुछ साडे गुनाह साडे को करांदे, साडा फ्लश साडे को करांदा है। फ्लश जरा है साडा शरीर दियां अभिलाषावां, ख्वाहिशां, तमन्नावां जिहड़ियां साडे तो करांदियां ने, वो शरीर नूं की करना हुंदा, कंट्रोल करना है। बदरू कास्टुट की जा सकती है, बदरू नूं कढ़िया जा सकदा है, पर शरीर नूं थोड़ी कढ़िया जांदा है। शरीर नूं नियंत्रण करना पैंदा है, कंट्रोल करना पैंदा है, सरैंडर करना पैंदा है। तो ध्यान रखना है कि किहड़ी जिम्मेदारी साडी आ ते किहड़ी जिहड़ी आ शैतान दी आ, तो कित्थों किनूं डांटना ते किनूं रोकना है। ठीक है, ये ना होवे आप असी गलती करिए, आप गुनाह करिए, उस तो बाद शैतान का नाम लगाता जाए कि शैतान ने करवा। नो, सम थिंग्स इज नॉट द डेविल, इट्स अस। हम असी बाय चॉइस करते हैं। तो डायग्नोस करना कि किहड़ा शैतान वालों है, किहड़ा जिहड़ा है साडी अपनी बाय चॉइस दे नाल है। तो ध्यान रखिया जाए। कई बार जिहड़ा है स्विचिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिहड़ी आ वो सही स्पिरिचुअल वारफेयर नहीं है, सानू देखना है। ऑलराइट, पहला करंथियां, दूसरा करंथियां बाय द वे, उस दी 10वां चैप्टर ते उहदी तीसरी, चौथी और 5वीं आयत अगर कोई पढ़ता है तो दैट बी नाइस। नहीं तो मैं सामने हवाला तुहाडे पेश किया है, तुसीं पढ़ सकते। कोई पढ़ना चाहता है हवाला? बस काफ़ी। थैंक यू सर जी। अब समझ रहे हैं यहाँ पर जो व्यवहारिक तौर पर किस तरह से लड़ाई को लड़ना है उसका तरीक़ाकार बताया, उस सिस्टम बताया। क्या लिखा है? साडी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, और साडे हथियार भी जड़े ने वो शरीरिक नहीं है। लड़ाई भी आत्मिक है और हथियार भी आत्मिक है। अब प्रैक्टिकली तौर पर 5वां हवाला कह रहा है, हम हर एक कल्पना को, हर एक उस ऊंची बात को, भावनाओं को, ठीक है, अंग्रेजी कह रहे इमेजिनेशन एंड हाई थिंग, हाई थॉट, जो है परमेश्वर के वचन के खिलाफ उठती है। हुण ठीक है, कल्पना कित्थे आ? दिमाग दे विच, भावना है दिल दे विच, ठीक है, ठीक है। शैतान जड़ा है डायरेक्ट जो है कई बार काम नहीं करता है, वो ऐसे विचार, कल्पनाएं, इमेजिनेशन, ऐसी भावनाएं, तलब पैदा करेगा। ओ मैं ये काम करूं, ये करो। तो इससे पहले कि गुनाह एक्शन में आए, वो पहले दिमाग दे विच विचार पांदा है, ख्याल पांदा है। जो ख्याल पांदा है, विचार पांदा है, थॉट पांदा है, वो पिक्चर बनती है। वो पिक्चर जो बनती है उसनूं कल्पना कहता है। फिर उसनूं कल्पना करना शुरू करता है। जो कल्पना करना शुरू करता है, उसनूं किवें उहनूं पूरा करना, उसनूं लागू किवें करना, वो सारी सोच बनाता। जिवें किसी ने चोरी करनी तो पहले मन दे विच सोचदा, जो किसी ने गुनाह करना वो सब कुछ मन दे विच प्लैन करता, जो किसी ने खून करना सब कुछ मन दे विच प्लैन करता, सारी कल्पना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस तो पहलों कि वो गुनाह की शक्ल ले ले, वो जी कल्पना है, वो जरा विचार है, वो जो इमेजिनेशन है, वो जो थॉट्स ने, उन्होंने इस तो पहलों कि वो गुनाह की शक्ल लैके एक्शन के आन, असी पहले ही पकड़ लेने उस थॉट न, उस इमेजिनेशन, उस विचारधारा को, उस ऐसे नेगेटिविटी को पहले से पकड़ना, इससे पहले को एक्शन ले ले।
और उससे जो है हम प्रभु यीशु के ओबीडिएंट लेकर आना है, वचन के खिलाफ है, वचन के सामने उसको टिकाना है। क्या मायना कि ऐसे विचार आएंगे जो वचन के खिलाफ है, पाक कलाम के खिलाफ है, प्रभु की वाणी के खिलाफ है, ठीक है, वो कल्पना बन के, विचार बन के, थॉट बन के, एक नजरिया बन के जो हमारी जिंदगी में, ख्यालों में, हृदय में आते हैं। तो शैतान जो है इस तरीके से वार करता है, कल्पना लेकर। जैसे हवा गुनाह करने से पहले उसने फल को देखा, फिर उसने कहना शुरू कर दिया, ओ ये दिखने में कितना सुंदर है, मैं खा लूंगी तो उसके बाद मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। सब कल्पना शुरू होगी, विचार शुरू हो गए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या उससे फायदे होंगे, क्या क्या मुझे जो है अब परमेश्वर से पूछना नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग आई विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो सब जो है विचारों में शुरू हो गया। जब जैसे विचारों में शुरू हुआ है, उसने कल्पना करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ लिया। इससे पहले कि वो एक्शन में आए, उसने सब कुछ कल्पनाओं में कर लिया। इसलिए न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह कहते, अगर आप अपने मन से किसी के तरफ बुरी निगाह से देखते तो दैट मीन्स यू ऑलरेडी डिड इट, आप ऑलरेडी उस गुनाह को कर बैठे, क्योंकि कल्पनाओं में हो चुका है वो। यीशु एक और जगह पर कहते हैं, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर ज्योति में, नूर में, रोशनी में। कहने का मायना, आंख का क्या मायना, कि तेरी नज़र, तेरी कल्पनाएं, तेरी विचारधारा, तेरी नजरिया अगर जो है रोशनी में, तो पूरा शरीर उसमें। विच मीन्स कि अगर ये पार्ट नहीं है, अगर इसी पर फतह नहीं प्राप्त करी, जीत प्राप्त नहीं करी, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफीटेड लेटर ऑन, क्योंकि ऑलरेडी कल्पनाओं में अटैक हो चुका। सो द बिगेस्ट बैटल जो है, सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वो हमारे माइंड में, मस्तिष्क में शैतान बुरा ख्याल डाल देता है, नेगेटिव विचार डालता है, नहीं ठीक नहीं होना है, ये बीमारी तेरे साथ रही, तू सफल नहीं हो सकता, तू तेरे से नहीं होगा, तू कर ही नहीं सकता, तेरे से ऐसा होगा ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं और कुछ मुंह से कह भी देते हैं, अपने लोगों को कहते हैं, अपने बच्चों को कह देते हैं, अपने अजीजों को कह देते हैं, गुस्से में आके कह देते हैं। तो वो जो है चीजें असर लेकर आती हैं। तो क्या है, पहले कल्पनाओं में है। तो इंसान जो है हीन भावना, गिल्ट फीलिंग और सब चीजें जो कल्पनाओं में कैरी करता है, विचारों में करता है। तो शैतान जो है उससे पता है कि आपको आप वचन को जानते हैं, विश्वासी है, तो डायरेक्ट अटैक ना करके वो कल्पनाओं पर, विचारधारों पर अटैक करता है। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, जब वो 40 दिन 40 रात रोजे रख रहे थे, ठीक है, सेवकाई को शुरू करने से पहले, तो शैतान लिखा है उसे ऐसे किनारे पे लेके उसने पूरी दुनिया से दिखाई। आप सोचते इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर आप देख जाकर खड़े हों और वहां से सारी दुनिया दिखाई दे? आई डोंट थिंक सो। आप कुछ हद तक ही देख सकते हैं। क्या है? कल्पनाएं, ऐसी विचारधाराएं, कल्पनाएं पैदा करता है, सोचे पैदा करता है, आपको ऐसे किनारों पर लेके जाएगा, ऐसे जहां पर आप नेगेटिव सोचें, गलत सोचेंगे, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कह दूं, ऐसे करूं। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हम लड़ाई कैसे लड़ते हैं, आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ते हैं, इससे पहले कि वो नेगेटिव विचार आए किसी के बारे में, किसी के खिलाफ आए, इससे पहले कि वो विचार आके आपको जो है डिफीट कर दे, आप एक्शन ले लें। तो क्या कह रहा है कि हम 5वां हवाला से दोबारा से पढ़ें कि उन कल्पनाओं को हम क्या करते हैं। एक्शन है, आत्मिक लड़ाई है ये, ठीक है ना। उससे पहले तो रिजेक्ट करना है, खंडित करना है उससे। हर एक ऊंची बात मतलब जो प्रभु के वचन से ऊपर उठ जाती है। वचन कह रहा है मैं तेरे में चंगा कर दूंगा, वचन कहता है मैं मुहैया करता हूँ, वचन कहता है मैं तेरे साथ हूँ, पर कोई और बात आकर ऊंचा सिर कर लेती। कौन सी बात? शैतान मन में डाल देता है, नहीं तेरे से नहीं होगा, ये तेरी गवाही नहीं बनने वाली, तू नहीं ठीक हो सकता, ये दर्द नहीं जाएगी, ये ठीक नहीं होगा। तो वो बात प्रभु के वचन से ऊपर उठ गई है। तो हर बात जो प्रभु के वचन से ऊपर उठती है, उसे क्या करना है? खंडित करना है, रिजेक्ट करना है, रिनाउंस करना है, उससे खारिज करना है, कैंसिल करना है, रद्द करना है। बोले हर एक कल्पना और ऊंची बात, ऐसी बात जो प्रभु के वचन से ऊपर उठती है, वचन कुछ और कह रहा है पर वो बात जो है कुछ और कह रही है, तो आपने उसको जज करना है, परखना है। नहीं, ये वचन के खिलाफ है, नो आई कैन नॉट, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा या कहूँगी, ऐसा नहीं सोचूंगा जो वचन से उलट जा रहा है। तो पौलुस सिखा रहा है कलीसिया को कि हर एक कल्पना और हर वो बात जो प्रभु के वचन से ऊपर उठती है, इससे पहले कि वो एक्शन में आए, इससे पहले कि आत्मिक तौर पर आप पराजित या हार जाएं, उस तो पहले ही उस गल नूं करना है, रिजेक्ट करना है। मन च आ रही है, सोचा में आ रही है, दिल च आ रही है, भावनावां च आ रही है, पर उस तो पहले कि
वो बाकी ज़िंदगी को ख़राब करे, पहले उत्थे पकड़ लेना उस विचार को। नो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं देना, नो मेरे साथ नहीं हो। हम शक करते हैं, डाउट करके हम जो हैं कुछ कुछ कह देते हैं कि नहीं कद मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, हाय मेरे नाल इदां ना हो जाए, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਿਆਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਊਦ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਿਆਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਸ਼ ਫੇਰੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਿਆਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੋਪ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਥਿੰਗ, ਦਿਸ ਗਾਈ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਹ ਗੁਲਿਆਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬਾਈ ਬੜੀ, ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਥਿੰਗ, ਦਿਸ ਗਾਈ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਯੂ। ਸੋ ਜੋ ਹੈ ਵਚਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ। ਸਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਾਇਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ, ਕਾਇਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਨਾਹ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਂ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਕਲਪਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਇਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਡੂਇੰਗਸ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਲਪਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਚਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਨੋ।
ਇਸ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵਾ ਜੌਨ 10:10 ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂਹੰਨਾ 10:10, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ 10ਵੀਂ ਅਧ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਨ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਅਬੰਡੈਂਟ ਲਾਈਫ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ, ਸੰਪੂਰਨ, ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ, ਅਬੰਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜੀ, ਖੋਖਲੀ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਫਤਹਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਸਾ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਜਿਤ, ਡਿਫੀਟਡ ਲਾਈਫ ਜੀਣਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬੰਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਸਰਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਰਟਨਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:8 ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਢੂੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾੜ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Who cares? I'm gonna get somebody. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਨਾ ਲੜੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੌਨ 10:10 ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, he would not sit down. Somebody has to stand against every power of darkness. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਡਾਂਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਿਬਿਊਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਰਿਬਿਊਕ ਕਰਨਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਖਿਆਲਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 28, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 28, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਵਰਸ। मत्ती दी इंजील चैप्टर 28, बाइबल दी पहली इंजील, उदा पहला सुसमाचार, उसका आखिरी अध्याय 28। वेरी पावरफुल, आपके लिए इनकरेजमेंट है, हम सबके लिए उत्साह का कारण है। ऑलराइट, चैप्टर, हाँ जी, उस दी 18वीं आयत। ये पावरफुल टूल है जी तुहाडे लिए, सारे दे लिए। ये कुंजी आपने ना समझो कि इस हवाले नू कंठस्थ कर लेना है, जुबानी याद कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है। यीशु मसीह, ये
ये तब की बात है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले, स्वर्गारोहण होने वाला था, असेंड करने वाले थे। तो जाने से पहले इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, बोले याद रहो, अब यीशु मसीह सलीब पर ऑलरेडी जा चुके हैं, पापों का भुगतान कर चुके हैं, निजात खरीद चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, जी उठे प्रभु यीशु मसीह। अब मौत पर, शैतान पर और सिकनेस डिसीज पर और हर पताल पर जो हैं फतह प्राप्त कर चुके हैं। एवरीथिंग इज डन। तो उसके बाद उन्होंने हवाला कहा, उससे पहले नहीं कहा। ये सब कुछ पूरा संपूर्ण करने के बाद लिखा है, पृथ्वी का, सारे आसमान जमीन का पूरा इख्तियार, पूरा अधिकार, पूरी पावर मैनू दी। यह याद रखना है। हुण भावें जिहड़ियां ताकतां आसमान से जो हैं आकाश में रहकर ऑपरेट करती हैं या जमीन में ऑपरेट करती हैं, कोई कैसी भी ताकत क्यों ना हो, प्रभु कह चुके हैं कि अब पूरा इख्तियार, पूरी अथॉरिटी जो है, पूरा जो है पावर जो है, यीशु मसीह को दिया गया। ऑल द पावर्स, वेदर इज द स्काई और ऑन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर्स, कितने भी क्यों ना होवे, प्रभु यीशु मसीह कहते आसमान जमीन का संपूर्ण पूरा दा पूरा इख्तियार, पूरी दी पूरी अथॉरिटी, पूरी जो अधिकार जरा मैनू दिता, इसलिए तुसी जाओ, इसलिए आप जाओ बोले। नाउ यू गो बिकॉज आई हैव द अथॉरिटी। सो ही इज सेंडिंग अस विद हिज अथॉरिटी। और वो जो इख्तियार है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देते, उस तरीके से वो हमें देकर भेज। अब जाकर तुम जो है सुसमाचार सुना, बाप बेटा रूपा के नाम से बैप्टिज्म और सारी बातें जो मैं तुम्हें सिखाई हूं, सब कुछ सिखा, बिकॉज अथॉरिटी इज गिवन टू मी राइट नाउ। सारी आसमान की ताकतें हों, कोई बदरू, कोई शैतानी ताकत, कोई जादू टोना, कोई भी ऐसी शैतानी हरकत आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, अगर आप यीशु के उस इख्तियार के अंडर में हैं तो। नथिंग, नथिंग, आई मीन नथिंग। एक और हवाला मैंने चाहा, पहले मैंने कहा आखिरी, पर ये डेफिनेटली आखिरी है। मरकुस की इंजील चैप्टर 16, मरकुस, क्योंकि इसी बात को मरकुस जो है फ़र्क तरीके से और कुछ एक्स्ट्रा बातें जो यीशु ने कही हैं उसके साथ वो बयान कर रहे हैं। मरकुस की इंजील चैप्टर 16 हवाला पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा आप में से कोई भी पढ़े, जैसे बहन पढ़ रही थी। चैप्टर 16 को निकाले एंड 15 हवाले से पढ़ना शुरू कर दें। यही मत्ती में भी कहा था, है ना, कि जाओ, इख्तियार पूरा दिया गया, पूरे पृथ्वी में जाओ। शुक्र है, इसलिए इसराइल से जो है सुसमाचार का प्रचार हमारे देशों में, हमारे मुल्कों में, क्योंकि खुदा ने उनको कहा था। आगे पढ़िएगा। राइट, कंटिन्यू। कंटिन्यू। अब यीशु बोल रहे हैं, विश्वास करने वाले लोगों के साथ ये चिन्ह, निशानियां। क्या निशानियां जी? पढ़िएगा। ब्रेक दीजिए, रुकिए। अब ये पासबानों की बात नहीं हो रही, ना सेवकों की बात हो रही। लिखा है ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जो विश्वास करने वाले, ठीक है ना, यही लिखा है ना, विश्वास करने वालों के साथ ये निशान है, ये चिन्ह है उनका। हर बदरू को वो हुक्म दे देंगे और उनको जाना है, ठीक है। ये जो 8 वीक की सीरीज एक्चुअली जो स्पिरिचुअल वारफेयर में टीच करता, शैतान इस जमीन पर इलीगल है, उसको नहीं है, इख्तियार नहीं है। आदम वंशी, जो आदम से लेकर जितने इंसान हैं, उनका पहला इख्तियार है जमीन पर। गुनाह की वजह से वो इख्तियार छिन गया था, और गुनाह से माफ़ी पाने के बाद दोबारा वो जो इख्तियार है विश्वासियों को। अब हम जो हैं खुदावंद के खून के खरीदे हुए लोग जो हैं, उनको पूरा इख्तियार है कि हर बदरू को जो इलीगल है उस ज़मीन पर, उसको इधर कुछ ऑपरेट करने की कोई इख्तियार नहीं है। चाहे किसी के घर, घराने, व्यक्ति, चीज़ों, साजो सामान या शरीरों के अंदर क्यों ना हो, हर विश्वासी को पूरा इख्तियार है। लिखा है, निशान है उनका ये, कि वो हर बदरू को डांटेंगे और दौड़ा देंगे। तो शैतान इलीगली काम कर रहा है, उसका कोई हक नहीं है। पूरा हक किसका है इस ज़मीन पर, ज़मीन की बातों पर? विश्वासियों का।
ईमानदारों का। देखा, तुम जो है बदरूओं को निकालोगे, दैट्स इट, मीन्स उसके अंदर कुछ और। आपको ये अथॉरिटी समझ आनी चाहिए कि यीशु का पूरा इख्तियार है, आसमान ज़मीन सब पूरा पूरा इख्तियार उसका। इसलिए खुदावन कह रहे मैं तुम्हें ये इख्तियार दे रहा हूँ, अधिकार दे रहा हूँ, तुम जाओ, तुम सुसमाचार सुनाओ और बदरूओं को निकालो। निकालो अपने घर से, चीज़ों से, व्यक्तियों से, बच्चों से, गाड़ी से, घर के साजो सामान से। कोई फियर नथिंग, जस्ट विश्वास करने का बोले। दैट्स सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। विश्वासियों को पूरा इख्तियार है, ठीक है। ये आत्मिक लड़ाई है। पूरा कर दें हवाले से साहब। हाँ जी, राइट, बस जी काफ़ी है। इट्स माई 1 आवर टीचिंग ऑन दिस सब्जेक्ट एक्चुअली। यही इसी वर्ष पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको बार बार पढ़ के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यू विल बी पावरफुल। आप बड़े सामर्थ्य विश्वासी होंगे। ढिले ढिले विश्वासी रब नूं सुस्त नहीं चाहिए। मैं तुहानूं क्लीयरली कह रहा, यीशु मसीह चाह रहा है कि गरम जितों शैतान डरे, जिन्होंने पता उहदा इख्तियार किया, उन्होंने पता है उदा बाइबल स्टडी के ढेर लाने का कोई फायदा नहीं जे शैतान को हराया नहीं है, फतेहमंद जिंदगी नहीं जीए। जिन्हें मर्जी नोट्स तैयार करी जाओ, जिन्हें मर्जी व्हाट्सअप ते फड़िया इधर मैसेज इनू भेजता, फड़िया उन्होंने भेजता, इतों चुक्या उन्होंने भेजता, कदे उत्थे फड़िया तो उत्थे भेज दिता, इतों हवाला चुक्या तो उत्थों फड़िया। ए वाला जिन्हें कुछ नहीं जे करना। एवरीडे फैसलों के यीशु के नाम के हर बदरू का सामना करो, तानू हरावो। तानू पूरा इख्तियार यीशु मसीह प्रभु ने तुहानू प्रिपेयर किया है। बाणी तुहाडे हाथ च दित्ती गई है। आ फ्लोटिंग मैसेज भेजन देना कुछ नहीं होना। मैं आम चलूँ द बेस्ट वे इज प्रैक्टिकली तौर पर हर दुश्मन जो तुहाडे खिलाफ काम करता, हर शैतान की हरकत जो तुहाडे खिलाफ करती, हर बुरा ख्याल, बुरी जो है कल्पना जो आती है, उसनों अरेस्ट करो, यीशु दे नाम ते डिफीट करो। एंड दैन ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਹੈ पूरा ਹੁੰਦਾ। देखो कि हर बदरू ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ काम करती है, किसी ਤੁਹਾਡੇ अजीज़ के खिलाफ काम करती है, खानदान के खिलाफ करती है, फाइनेंस के खिलाफ करती है, फैमिली के खिलाफ करती है, बच्चों के खिलाफ काम करती है, हैल्थ के खिलाफ काम करती है। यू हैव फुल अथॉरिटी इन जीसस नेम। पूरा इख्तियार है, अधिकार है। डांट के, रिब्यू करके, एक्सपेल कर सकते हैं। देखिए, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। यीशु मसीह ने कहा तू हाथ रख, काम मैं करांगा। सो बिलीविंग दैट स्पिरिचुअल वारफेयर काम है। आत्मिक लड़ाई ऐ वा। सिर्फ इमोशनल होना, शोर करना काफ़ी नहीं है। एक्शन में काम दिखने। बीमार ठीक होने चाहिए, बदरुएं निकलनी चाहिए, सांपों को पिकअप कर लेना। जिन्होंने पिकअप इस मीन्स लाइक अपरूट करना, है ना। सांप जो है यहाँ पर वाकई नहीं जाके सप चुकने, ਇਹਦਾ मतलब है कि उन्होंने अपरूट करना, उन जड़ों तो कढ़ना शैतान दी हरकतों। नाम दिते गए ने, सांपों और बिच्छों को तुम लताड़ोगे। क्या मतलब है? ज़बूर 91 में लिखा है ना, सांप और बिच्छों। ਇਹਦਾ मतलब कि जाके सांप और बिच्छुओं के पैर रखोगे ना। इस डिमोनिक फोर्सेस का नाम दिता गया है। शैतानी ताकत हैं जिहड़ियां वो तुहानूं कुछ नहीं कर सकती। तुसीं अपरूट करोगे, उसको निकाल दोगे, फेंक दोगे। अगर बोले कोई जहरीली या नाशिक चीज़ आपको पिला दे, जादू टोना हो, जहरीली जाग नहीं, आप खुद जो है पीने रहो। लिखा है इफ़ एनीबॉडी, अगर कोई आपको पिला दे, कुछ नहीं होने वाला। खुद नहीं खुदा नूं परखना, पर अगर समबडी डज, यू विल बी सेफ एंड सिक्योर खुदा में। आमीन। नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू। बिलीव इन जीसस। यीशु आपको महफूज करके रखेगा, संभाल के रखेगा, रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। यू विल बी आवर पावरफुल। यीशु के नाम से आप फतह पाएंगे, जीत प्राप्त करेंगे। नथिंग कैन डिफीट यू। एनी वेपन दैट इज फॉर्मिंग, कोई भी हथियार जो तुहाडे खिलाफ छड्डिया गया वा, वो कदे भी सफल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। यीशु तुहाडे नाल है। एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन जीसस क्राइस्ट। ए विक्टोरियस थिंग्स विल। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं मुझे वॉच करें, मैं चाहूँगा आप आंखों को बंद करें। इन ए मोमेंट एज आई प्रे, आई नो, जैसे मैं प्रार्थना करूँगा खुदावन की सामर्थ आप तक पहुँचेगी। आई बिलीव आई हैव सीन थिंग्स हैपन, मिरेकल्स टेकिंग प्लेस। आई डोंट नो व्हाट यू प्रे रिक्वेस्ट, आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो जीसस डज ग्रेट थिंग्स। मुझे पता है कि यीशु बड़ी पावरफुल चीज़ें करते हैं। यीशु मसीह मौजा करते हैं, चमत्कार करते हैं, हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड आई सी मिरेकल एवरी डे। मैं हर दिन किसी न किसी मिरेकल्स को देखता हूँ और हर दिन चंगाइयों को देखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हर विश्वासी को खुदा ने ये फतेहमंद ज़िंदगी
का वायदा किया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ और आप विश्वास करें कि यीशु आपके साथ है, अंग संग है। आप हर नेगेटिविटी का सामना करेंगे और शैतान को हराएंगे और दूसरों को भी आज़ाद कर पाएंगे यीशु के नाम। आंखों को बंद करें राइट नाउ इन जीसस नेम। आई एम गोइंग टू प्रे राइट नाउ। फादर इन जीसस नेम I pray right now something miraculous, something powerful take place which has never happened before. यीशु के पाक पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक शख्स जो राइट नाउ प्रेजेंट है इस जूम सर्विस के जरिए या खुदावन कहीं पर भी मुझे वॉच कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, यीशु के पाक पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ राइट नाउ द अनॉइंटिंग फ्लो, द पावर फ्लो, द हीलिंग पावरफुल हैंड ऑफ द लॉर्ड जीसस में भी स्ट्रेच फोर्थ यीशु के नाम से छूए खुदावन उन हड्डियों को, शरीरों को, मांसपेशियों को, हड्डी हड्डी नस नस को छू के आप चंगा करें। यीशु के मार खाने से हम चंगा हो चुके हैं, सचमुच उसने हमारे गम और दुखों को उठा लिया। मैं प्रार्थना करता हूँ मसा आए, अभिषेक आए, अनॉइंटिंग आए, छू लीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं अगर हमारे बीच में अभी कोई शख्स जो मुझे वॉच कर रहा है, जहां इस क्लास में बैठा हुआ है, जहां सुन रहा है, वॉच कर रहा है, यीशु तेरा हाथ आगे बढ़े। पिताजी अपना हाथ बढ़ाकर आप चंगा करें राइट नाउ इन जीसस नेम। द अनॉइंटिंग फ्लो, द पावर फ्लो इन जीसस नेम। खुदावन इन इन वेव्स के जरिए तेरा मस्सा जाए, तेरा अभिषेक जाए, छू ले, अब चंगा करे, हील करे, डिलीवर करे। यीशु के नाम से हर बदरू को मैं छिड़कता हूं, इनकी जिंदगी ख्यालों, सोचो, खानदानों, घर घराने, फाइनेंस से जाती रहे, रिजेक्ट करते हैं, रिनाउंस करते हैं, कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं। हर शराब को जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला है किसी वजह से, जहां इनके खुद की वजह से या खानदानी तौर से चलता आ रहा है, उस शराब को मैं रद्द करता हूं, कैंसिल करता हूं, खारिज करता हूं। और यीशु की बरकतों का, चंगाइयों का, शिफाओं का, फेवर का, उसकी कृपा का, फजल का ऐलान करता हूं। छू ले, एक एक शख्स को बल बख्श, सामर्थ दे, हिम्मत दे, दलेरी दे, हियाव बख्श, एक नई जिंदगी, नई ताजगी, नई सामर्थ शक्ति से ब्लेस करे। यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांग लेते हैं। आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।